Good morning, children. So once again, once again, we are meeting in revision lecture number 6 of chapter 3, Movement Towards the New World. Now see children, in lecture number 5, I have explained you the 20 years timing. What happened in that 20 years which led the world towards Second World War. As I told you in previous lecture, thousands of factors were responsible for Second World War. But the major chapter we have studied was fascism of Italy, Nazism of Germany, militarism in Japan, and above all, the global depression of America. Right? Now, we are today connecting ourselves to causes of World War II. Right? Causes of World War II. Now see children, whatever factors we have studied in causes of World War I is almost related to causes of World War II. So, we'll start with first. First cause, fierce nationalism. Fierce nationalism. Fierce nationalism was born in Germany, in Japan, as well as in Italy. So we will once again study all these factors in brief. What happened at that time? Is it clear, children? So let us start. Fierce nationalism. My topic is page number 61. After the First World War, fierce nationalism developed in Germany, Japan and Italy. और बार बार मैं ये बोलता रहता हूँ कि जो बुक में दिया है उससे कई गुना अधिक मैंने आपको समझाया है. So we are just supposed to revive all these things because जो मैं बोला वो इस बुक में लिखा है. What was Nazism? Why was Nazism born? In previous lecture I have explained in detail with examples. What is fascism? You have studied. Why militarism developed in Japan? You have studied. Right? Germans could not forget the overcome of Treaty of Versailles. एक अंदर बदले की आग थी कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के वक्त हमको बहुत अन्याय हुआ है, इसलिए इसका जवाब तो मिलेगा. समझ में? Consequently, Hitler captured सब प्रोविंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड चेकोस्लोवाकिया. हिटलर कैसे सत्ता में आया इधर नहीं लिखा, मैंने आपको समझाया है. In 1932, when he came into power, 32-33, he started to expand each and everything. He just considered Treaty of Versailles as a piece of paper. Treaty of Versailles की कीमत क्या है? Just एक कागज के टुकड़े की माफिक उसकी कीमत है, उससे कुछ ज्यादा नहीं है. और जो Treaty of Versailles में जर्मनी को नहीं करता था वो सब हिटलर ने शुरू किया. समझ में? 16 points was suppressed on Treaty of Versailles. 16 points were there which suppressed Treaty of Versailles. जर्मनी को ये नहीं करने का, वो करने का, वो करने का, वो ऐसे 16 पॉइंट, वो 16 पॉइंट एलिमिनेट किए हिटलर ने. और जो नहीं बोला था वो पहले करना शुरू किया. लोगों को भी अच्छा लगा कि भाई चलो कोई तो है हमको इस अघोर परिस्थिति में से बाहर निकालने वाला, हमारे ह्यूमिलिएशन का बदला लेने वाला, हमारे साथ जो इंजस्टिस हुआ है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की वजह से उसका कोई जवाब तो देने वाला है. सो पीपल वेलकम दिस थिंग्स. एंड यू नो चिल्ड्रन, दुनिया का कोई भी नेता अपने लोगों के सपोर्ट के बिना कभी आगे नहीं बढ़ सकते. हिटलर ये क्यों कर रहा था? कि उसको उस वक्त
हिस्ट्री जो भी बोले, लेकिन 7 करोड़ जर्मनी के लोग उसके साथ थे, तो ये सब हो सकता है ना, अकेली थोड़ी कर सकता है। His steps was welcomed by the people. Understood? Italy captured provinces of Austria and Czechoslovakia, following the Nazi philosophy. The Germans missed those provinces growing in Germany. स्वस्तिक का सिंबल था, मैंने पिछले लेक्चर में बताया। उसने स्ट्रॉन्गली ऐसा प्रोपोगेट किया, it is Germany who is born to rule the world. Germans are born to rule the world because इस दुनिया में प्योर आर्यंस एक ही लोग हैं, जर्मन, और आर्यंस पूरे देश पे राज करने के लिए बने हैं। तो उसने एक कहावत प्रोपोगेट की कि इट इज जर्मनी वेयर जर्मन्स आर। यूरोप में जो जर्मनी के आसपास बगल वाले जो कंट्री थे, उधर सब साइजेबल पॉपुलेशन थे, थोड़े जर्मनी वाले। तो उसने ये क्लेम किया कि ये हमारा है। क्यों? कि उधर जर्मन बसती है। मान लो एक छोटे से शहर में 1000 की आबादी में से मान लो कि 50 जर्मन रहते हैं, तो 950 को नहीं गिनने का, 50 जर्मन रहते हैं, इसलिए वो बात जर्मनी का बन गया। इट इज जर्मनी वेयर जर्मन्स आर, बिकॉज आर्यंस आर बोर्न टू रूल द वर्ल्ड। ऐसी फिलोसॉफी लोगों के दिमाग में ठहरा दी थी, राइट? Italy could not forget the ignorance of Peter Forsyth. इटली को अपना बदला लेना था, जर्मनी को अपना बदला लेना था, जापान को अपना बदला लेना था, right? Under the leadership of fascist party, Mussolini started fierce nationalism and adopted imperialistic policy. एक तरफ जर्मनी ने शुरुआत की, दूसरी तरफ इटली ने शुरुआत की, तो जापान क्यों चुप बैठे? जापान ने भी एशिया में शुरुआत कर दी। ये जो घटनाएं हैं वो 33 के बाद की है, 5 साल की, राइट? एंड thus world peace was in danger. सेकेंड, ग्रुपिज्म वापिस सीक्रेट ट्रीटीज मैंने जो पढ़ाया है ना, वो वापिस बनने लगा ग्रुपिज्म। वापिस ग्रुप्स बनने लगे, राइट? सिंस फ्रांस was always afraid of Germany, सबसे बड़ा खतरा फ्रांस को था, क्योंकि जर्मनी इधर जर्मनी है, इधर फ्रांस है, राइट? ऐसा यूरोप का मैप देखो तो ये जर्मनी है सपोज, तो ये भाग फ्रांस है, तो फ्रांस को एडजेसेंट बॉर्डर मिलती है, तो सबसे बड़ा खतरा फ्रांस को था। और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में फ्रांस भी शामिल था। इंग्लैंड तो काफी दूर है, लेकिन ज्यादा खतरा किसको था? फ्रांस को। तो फ्रांस ने अपने टूरिन प्रोविंस की बॉर्डर में उधर जमावट कर दी, मतलब आर्मी का इंस्टॉलेशन बढ़ा दिया, क्योंकि जर्मनी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। और ऐसा ही हुआ था जब वर्ल्ड वॉर 2 ब्रेक आउट हुआ, एक ही महीने में फ्रांस को धूल चढ़ा दी थी जर्मनी। सबसे पहला देश जो टूटा था वो फ्रांस था, तबाह कर दिया था फ्रांस को, राइट? सो once again groupism. Since France was afraid of Germany after the First World War, it entered the treaty with Belgium, Poland, Romania and Czechoslovakia. 3-4 प्यादे बना लिए कि अगर जर्मनी ने हम पे हमला किया तो आप सब मेरी मदद करोगे, अगर आप पे हमला किया तो हम आपकी मदद करेंगे, हम 5 मिलकर लड़ेंगे। इसका देख के क्या हुआ? इटली साइन a treaty with Czechoslovakia, Yugoslavia, Romania, Hungary, Greece and Turkey and Austria. इटली ने ये सब सारे देश के साइन ट्रीटी साइन की कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो हम सब इकट्ठे लड़ेंगे, फ्रांस और इंग्लैंड को जवाब देंगे, राइट? रशिया साइन ट्रीटी विद जर्मनी, टर्की, लिथुआनिया एंड ईरान। रशिया वाज टोटली आइसोलेटेड, इसमें रशिया का कोई भाग ही नहीं है। रशिया का एंट्री होता है 43 में, जब जर्मनी ने उस पर हमला किया था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। Italy formed Rome, Berlin, Tokyo axis. Rome means Italy, Berlin means Germany.
जापान, ये तीनों अपनी एक संगठन बनाया, दिखा देना है फ्रांस और इंग्लैंड को, राइट, टू सपोर्ट जर्मनी एंड जापान. England and France formed another ally with democratic values. Germany signed non-aggression treaty with Russia. So the whole atmosphere of the world was spread with fear and suspicion. पूरी दुनिया में शंका आशंका के बादल गरजने लगे. किस वक्त कौन क्या करेगा किसी को मालूम नहीं था, कुछ भी हो सकता था, राइट. थर्ड, मिलिट्रिज्म means expansion of military. Militarism, right? On one side, efforts were made for maintaining world peace. एक बार विश्व शांति की बात हो रही थी, एक बार सब देश अपनी आर्मी बढ़ा रहे थे क्योंकि दिस वाज ए थ्रेट था, भय था, right? Whereas on the other side, European nations were competing with enemy nations. Day by day, more sophisticated weapons came into existence. उस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, right? उस वक्त वो फाइटर प्लेन, सबमरीन्स, मस्टर्ड गैस, वो सब बाजार में आ गए थे, मतलब इन्वेंट हो गए थे. The production of more and more weapons increased in Europe. War weapons became then manufactured. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थे ना वेपन्स, उससे कई ज्यादा अच्छे, कई गुना विनाशक वेपन्स वर्ल्ड वॉर 2 के लिए बनने लगे. And all these weapons were eagerly waiting for a war to break. अगर छोटी सी गलती हुई, और वैसी गलती क्या थी मैं आपको समझाऊंगा एक टॉपिक में, कि भाई अगर छोटी सी भी घटना हुई तो वर्ल्ड वॉर में फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट. ऑल द नेशंस मेड आर्मी ट्रेनिंग कंपल्सरी. छोटे छोटे बच्चे को, आपकी उम्र के बच्चे को आर्मी ट्रेनिंग उधर दी जाती थी ताकि कभी भी कुछ भी हो सकता था, राइट. ऑल नेशन बिगेन टू इंक्लूड मोर मैन इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. अभी मेरे पास उधर नहीं, एक आप ढूंढना वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त का इंग्लैंड था. इंग्लैंड में ऐसे एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होते थे. उस वक्त विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन वो बाद में आए, लेकिन उसके पहले विंस्टन चर्चिल का बहुत मान सम्मान था. उसका फोटोग्राफ पूरे पेज में, और वे अपनी उंगली बताते हुए नीचे लिखते थे आई वॉन्ट यू. मतलब ये मान लो ये पोस्टर है, पूरे पोस्टर में विंस्टन चर्चिल का सिर्फ चेहरा ही दिखता है और एक फिंगर दिखती है, और नीचे क्या लिखा होता है आई वॉन्ट यू, मतलब आप राष्ट्र की सेवा में लग जाओ, राइट. ऐसे ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आर्मी में आए, नेवी में आए, अपने देश के लिए कुछ कर सके. Finally, the World War has been declared when England had tried to, for the failure of League of Nations. वो तो मैंने बात पहले ही बोला था. League of Nations सेल्फिश मोटिव पे बना था. इंग्लैंड को अपना मोटिव था, फ्रांस को इतना अपना मोटिव था, अमेरिका को अपना लालच था, किसी के सेवा के लिए नहीं बना था. तो वो तो तय था, जब लीग ऑफ नेशन बना तब से तय था कि एक दिन ये फेलियर होगा, और जब ये फेल होगा तब दूसरा विश्व युद्ध होगा. ये तय हो गया था 1919 में. हाँ, in order to establish peace in world, the League of Nations was formed, but it neither could become supreme organization having sovereignty over other nations. League of Nations could not act impartially. सदा उसने पक्षपात भरा ही निर्णय दिया जिससे इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका का फायदा हो, और इसकी वजह से लीग ऑफ नेशंस ज्यादा टिक नहीं सका, जो वर्ल्ड पीस के लिए बना था. वही अब विनाश की ओर दुनिया को ले
प्रिंसिपल्स ही नहीं थे तो कौन सा प्रिंसिपल्स फॉलो करें? Member of nation did not oblige to take the problem of League of Nations or accept the judgment passed by League of Nations. उसकी सब कुछ आबरू दाव पे लगी थी, कोई उसको मान सम्मान नहीं देता था क्योंकि उसमें मान देने वाली कोई बात ही नहीं थी. Right? Many nations had moved out of the League of Nations. Initially, Russia and Germany snapped the ties with League of Nations. सबसे पहले कौन निकले? जर्मनी और रशिया. उसके बाद इटली और जापान निकल गए. उसके बाद छोटे बड़े राष्ट्र निकल गए ताकि लीग ऑफ नेशन की आबरू बिल्कुल सिंक हो गई. राइट? एबिसिनिया कैप्चर्ड, सॉरी, इटली कैप्चर्ड एबिसिनिया, जापान कैप्चर्ड मंचूरिया, जर्मनी snatched all the provinces of Czechoslovakia. Still, League of Nations could not do anything. कुछ नहीं कर सकता था. इसीलिए लीग ऑफ नेशन की आबरू जो सिंक हो गई, इसीलिए लोगों ने लीग ऑफ नेशन पे भरोसा करना छोड़ दिया. एक के बाद एक सारे नंबर्स उसमें से कमी होने लगे. राइट? द ग्रीड ऑफ पावर अमंग द several European nations of League of Nations could not stop good peace, and hence it was the biggest failure of League of Nations. Then Treaty of Versailles, as I told you, no need. The Treaty of Versailles got informing Paris Peace process at the end of First World War. Since Germany was found responsible for the war, it had to pay $65 billion, not 6.5. $65 billion as a war fine. Its rule province was taken away. Rhine River had been opened as an international sea route. Such unfair and humiliating treaty was forcibly imposed on Germany. मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, जर्मनी को जबरदस्ती ये सब कुछ कराया गया था, इसीलिए जर्मनी को सबसे बड़ा गुस्सा था और वही वर्ल्ड वॉर 2 का कारण बना. ऐसा कुछ the German dictator Adolf Hitler called Treaty of Versailles a piece of paper. वो सत्ता में आने के बाद Treaty of Versailles को वो क्या बोलता था? Just a piece of paper. उसकी कीमत क्या है? कागज के टुकड़े से ज्यादा नहीं है. इस पे लिख दे वो करने का, ये करने का, ये नहीं करने का, तो क्या हम सब मानने लगे ये करने का, वो नहीं करने का? कुछ नहीं होगा, हम अपने हिसाब से काम करेंगे. Right? And announced to reject it. Now, imperialistic ambition of Hitler. He wanted to create greater Germany. जैसे किंग विलियम केसर का था. यूरोप का मैप नहीं चाहिए, जर्मनी का मैप चाहिए. केसर से भी वो एम्बिशियस था क्योंकि उसने स्लोगन क्या लॉन्च किया था? इट इज जर्मनी वेयर जर्मन्स आर. और वैसा ही हुआ था कोर्ट ऑफ डेंजिंग में, जिसमें मैंने लिखा गया है. Let me see. Hitler laid the foundation of Second World War. His fierce nationalistic activities and military activities were responsible for Second World War. Fierce nationalism. पागलपन की हद की तरफ वो चला गया था नेशनलिज्म के लिए. मतलब वो जर्मनी की जो इज्जत आपको गवाई थी वर्ल्ड वॉर 1 में, वो ब्याज समेत वापस लेना चाहता था. और इसमें पूरा जर्मनी उसके साथ था. People were happy initially at these steps because they want the anger, the suffering of Treaty of Versailles. Treaty of Versailles के वक्त सबसे ज्यादा अपमानित जर्मनी था. तो स्वाभाविक है अंदर बदले की आग तो जलती होगी. ऐसा कुछ. That is why he wished unity, stability and prosperity of Germany at any cost. किसी भी कीमत पे जर्मनी को फायदा होना चाहिए. आपका जो भी हो वो हमसे मतलब नहीं है. आप खत्म हो जाओ मतलब नहीं है, जर्मनी का फायदा होना चाहिए बस. First meeting of imperialism was Austria. He was born there, and sizable amount of population lived in Austria. Right? Along with Germany, entered Austria on 12th March 1938. On the very next day, on Munich Convocation, ये सुनने वाली, समझने वाली बात है.
1938 का साल आ गया था। हिटलर इतना पावरफुल हो गया था, यूरोप के सारे देश उससे डरने लगे थे, खास करके फ्रांस और इंग्लैंड। जब उसने ऑस्ट्रिया पे कब्जा किया, मैं आपको सरल लैंग्वेज में क्यों बता रहा हूं, ताकि सारे बच्चे के दिमाग में ये इस बात समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं कि जब ऑस्ट्रिया में कब्जा किया, तब फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर दोनों उसको समझाने म्यूनिच आए थे कि भाई ओके, अब आपने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को विस्तार कर दिया, हमने कुछ नहीं बोला, आपने एबेसिनिया ले लिया, हमने कुछ नहीं बोला, आपने टर्की के आसपास से मेडिटेरियन सी क्रॉस किया, हमने कुछ नहीं बोला, आपने मिलिट्री नेवी एक्सपेंशन किया, कुछ नहीं बोला, अब आपने ऑस्ट्रिया ले लिया, अब आप रुक जाओ बस। ये दोनों की सलाह मशवरा था हिटलर के लिए। हिटलर ने उसकी बात मान भी ली कि भाई चलो, आप बोलते दोनों रुक जाते हैं, अब नो मोर एक्सपेंशन। ट्रीटी ऑफ म्यूनिच, जो म्यूनिच कॉन्वेंशन बोला है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर राजी भी हो गए कि चलो भाई, हिटलर ने हमारी बात मान ली, बराबर है कि भाई चलो अच्छा है, हमारी बात उसने मान ली, रख ली है। लेकिन दूसरे दिन के न्यूज़पेपर क्या बोलते हैं कि हिटलर क्लेम ऑन पोर्ट ऑफ डेंजिंग। दूसरे दिन की समाचार बनती है कि हिटलर ने पोर्ट ऑफ डेंजिंग पे अपना दावा किया है। क्यों वो इंपॉर्टेंट था, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी तक वो लोग उसको समझा के घर भी नहीं पहुंचे थे, तब उसने पोर्ट ऑफ डेंजिंग में दावा कर दिया, बराबर है। तो ये सब बातें हुई थी जो इधर कुछ नहीं लिखा है, ऐसा कुछ। पोर्ट ऑफ डेंजिंग वाज एपिसेंटर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट। On the very next day of Munich convocation, Germany captures Czechoslovakia। समझ में, वो लोग अभी घर पे नहीं पहुंचे थे। आज हाँ बोलते हैं, चलो हम शांति से बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करेगा, दूसरे दिन से चेकोस्लोवाकिया को अपने हिस्से में डाल देता है। 1 अक्टूबर 1938। So Britain and France became precarious कि इस आदमी पे कतई भरोसा नहीं करना चाहिए, बोलता है कुछ, करता है कुछ। और वैसे ही पोर्ट ऑफ डेंजिंग में होगा, 39 में हुआ था 1 सितंबर को। हिटलर पोर्ट ऑफ डेंजिंग लेना चाहता है, बिकॉज पोर्ट ऑफ डेंजिंग वाज अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पोर्ट फॉर जर्मनी। अगर वो पोर्ट मिल जाता तो पूरा रशिया, पहले रशिया के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, लेकिन पूरे रशिया और ईस्टर्न यूरोप में वो पहुंच सकता था, इसलिए पोर्ट ऑफ डेंजिंग इंपॉर्टेंट था। और दूसरा वजह ये थी कि उधर जर्मन पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो हिटलर ने तो ये बताया ही था कि इट इज जर्मनी वेयर जर्मन्स आर। तो ऑस्ट्रियन अथॉरिटी से कई बार रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमको पोर्ट ऑफ डेंजिंग दे दो, कोई देश अपना शहर पे कुछ दे सकते हैं ऐसे। तो ये हाँ ना चलता रहा। फिर ऑस्ट्रिया नहीं, पोलैंड, पोर्ट ऑफ डेंजिंग इज इन पोलैंड। पोलैंड से कई बार बात की कि आप हमको पोर्ट ऑफ डेंजिंग दे दो, पोलैंड ने मना कर दिया कि ऐसे कोई थोड़े बहुत दे सकता है क्या। तो हिटलर ने पोलैंड पे हमला किया और सिर्फ 12 घंटे में पोलैंड को हरा दिया। जो हिटलर ने पोर्ट ऑफ डेंजिंग नामक जगह मांगी थी, वो हिटलर ने 12 घंटे में पूरा पोलैंड कैप्चर कर लिया। दैट वाज द इनिशियल पॉइंट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, राइट। जर्मनी अटैक ऑन पोलैंड, द इमीडिएट कॉज, उधर से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। और हिस्ट्री में ऐसा लिखा गया है, मैं अपनी बात नहीं बोलता हूँ, पोर्ट ऑफ डेंजिंग पे हमला कैसे किया, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो ये लोग, आप कई मूवीज देखते हो, सीरियस देखते हो, जो बुक में छपा है उससे सत्य कई गुना बहुत डिफरेंट होता है। तो ऐसा हिस्ट्री में बोला जाता है कि पोर्ट ऑफ डेंजिंग लेना था, पोलैंड वॉर नहीं चाहता था,
पोलैंड और जर्मनी की ऐसे बॉर्डर है, इधर जर्मनी है, ये पोलैंड है, पोलैंड और जर्मनी की कॉमन बॉर्डर है। पोर्ट ऑफ डेंजिंग कैसे, कोई रीजन तो बताना पड़ेगा ना। तो ऐसा हिस्ट्री में बताया जाता है कि जर्मनी की जेल में जो हार्डकोर क्रिमिनल्स थे, जिसको मौत की सजाएं हुई थी, ऐसा समझ में, मौत की सजाएं हुई थी, जिसको फांसी लगने वाली थी, उन लोग को समझाया गया कि आप मरने वाले तो हो ही, तो जाते जाते अपने देश के लिए कुछ कर जाओ। एंड द बिगेस्ट डेथ इज द डेथ फॉर अ कॉज ऑफ नेशन, जिसको शहादत बोलते हैं। देश के अंदर रोज हजारों लोग मरते हैं, किसी को शहीद बोलते हैं क्या, लेकिन सरहद पे एक जवान जब मरता है उसको हम शहीद बोलते हैं, क्योंकि उसने अपनी जान मातृभूमि के लिए दी है। तो ये लोग तो क्रिमिनल थे, उन लोगों को समझाया गया यू आर फेसिंग द सेंटेंस ऑफ डेथ, तो क्यों ना जाते जाते आप अपने देश के लिए कुछ कर जाओ। They were convinced, and they were dressed in uniform of German soldiers. जैसे उरी में हुआ था, आपने देखा है, जो 4 आतंकवादी घुस गए थे कैंप में, वो इंडियन सोल्जर्स के बेस में थे। ठीक वैसे ही ये जो 19 प्रिजनर्स थे, उसको जर्मन सोल्जर्स के लिबास में बॉर्डर क्रॉस करवाया पोलैंड की, और उसको शूट कर दिया जर्मन फोर्सेस ने। बराबर, जर्मन फोर्सेस ने उसको शूट कर दिया। ये पूरी घटना से पोलैंड तो अजान था, क्योंकि उधर कोई पहरा भी नहीं लगा हुआ था। ऐसे रास्ते में जर्मन फोर्सेस ने उन लोगों को घुसाया और सरहद के अंदर शूट कर दिया, और पूरा दोष पोलैंड पे लगा दिया कि भाई पोलैंड ने हमारे आर्मी के 19 जवान को मार डाला। बिकॉज ऑफ दिस रीजन जर्मनी अटैक पोलैंड। रीजन टू स्टार्ट, पोलैंड वाज टोटली अनप्रिपेयर्ड। ये घटना हुई थी 1 सितंबर 1939 को। ऐसा तो नहीं कि भाई हमारे 19 जवान को मार डाला है, इसलिए हम पोलैंड पे हमला करेंगे। एंड पोलैंड पे जो हिटलर ने हमला किया था, उसका जर्मन लैंग्वेज में नाम था ब्लिट्जक्रिग, BLITZEKIG, ब्लिट्जक्रिग। उसका मतलब क्या होता है? एज फास्ट एज लाइटनिंग। पोलैंड को जो मालूम नहीं था, वो जर्मनी को मालूम था। अगर पोलैंड थोड़ा भी चौकन्ना होने से पहले जर्मन ने पोलैंड पे हमला किया और पूरा पोलैंड 12 घंटे में कैप्चर कर लिया, और उधर से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। ये इधर जो बताया गया है 7th पार्ट, जर्मन अटैक ऑन पोलैंड, इधर तो 2 लाइन में खत्म कर दिया है, लेकिन वास्तविकता कुछ दूर अलग थी, जो इसलिए मैं बताते नहीं है। राइट, सी the aforementioned cause has made the whole world to sink on the heap of ammunitions. A small spark could blow the whole world. ये small spark नहीं होता ना, जो 19 prisoners थे, उन लोगों को border cross करवा के उन लोगों को मार दिया और बोलते हैं कि हमारे सैनिक को मारा है। क्योंकि कई सारे ऐसी घटनाएं होती है जो बुक्स में कभी नहीं आती। कारगिल के वक्त भी ऐसा ही हुआ था ना, पाकिस्तानी आर्मी के बेस में आतंकवादी थे, जब हमने उसको मार दिया है, तब इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अशेम होने से उन लोग ने अपने आर्मी के जवान के डेड बॉडी भी लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि आर्मी को आतंकवादी बना दिया था इन्फिल्ट्रेशन के हिसाब से। अब कारगिल की बात पढ़ लो, पूरा डेटा दिया है नेट में। पाकिस्तानी आर्मी वाज डिस्गाइज्ड इन द वे ऑफ टेररिस्ट। अगर वो बोले कि हमारे आर्मी के जवान है, तो पाकिस्तान एक्सपोज हो जाता। तो उसने अपने आर्मी के जवान के डेड बॉडी लेने से भी इनकार कर दिया था। हमने बार बार बोला इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भाई आपका ये पूरा कचरा ले जाओ, आपका पार्सल ले जाओ इधर से। बोले हमारा कोई कचरा है ही नहीं,
ये लोग आतंकवादी थे। तो ऐसे कई घटनाएं होती है जिसको टॉप कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है और हमको दिखाते हैं कुछ और। And this part with Germany on the peaceful Poland, 1st September 1939, early morning. पोलैंड को सो रहा था। पोलैंड को नहीं मालूम था कि जर्मनी के 19 जवान की हमने हत्या की है। जर्मनी को मालूम था कि हमने पोलैंड ने हमारे 19 जवान मार डाले। ये सब राजनीति होती है, इसमें पॉलिटिक्स होता है, राइट? Thus, the World War II began. Britain and France warned Germany to stop the war immediately. ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को धमकी दी, बंद करो ये सब। जर्मनी ने कुछ नहीं किया, वो तो चलेगा। जर्मनी ignored that warning and hence Britain and France plunged the war. जर्मनी को यही चाहिए था। जब फ्रांस ने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर किया, 1 महीने में फ्रांस को खत्म कर दिया। Within 1 month, German army entered Paris. The first nation, big nation, which fell in the hands of Hitler was France. खत्म कर दिया था। जो 20 साल में फ्रांस ने मुल्क में इकट्ठा किया था जर्मनी का, जर्मनी ने 20 दिन में खत्म कर दिया। राइट? नाउ आउटलाइन पूरा शुरू हुआ पोलैंड से, खत्म हुआ हिरोशिमा नागासाकी से। छोटी बात है। With the commencement of World War II, the world was divided into two power blocks, जैसे मैंने आपको पढ़ाया। On the Allied side was England and France, and Germany on exchange and Italy and Japan. दोनों सामने सामने आ गए थे। Because of this, there are many factors which took place in war, right? और अगर आपके पास टाइम है, if your parents are permitting you to go out, right? इसमें तो कुछ नहीं है। अगर आपको पढ़ने का शौक है, बराबर है, तो एक राइटर है, मैं आपको नाम बताता हूँ, नागेंद्र विजय। नागेंद्र विजय, राइट? ये राइटर है। इसकी एक बुक है, गुजराती वर्जन में भी मिलती है, इंग्लिश में भी मिलती है। उसमें पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इतिहास दिया गया है। मैंने 2-3 बार ये बुक पढ़ी है। प्लानिंग नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच हैपेंड, राइट? वी डोंट हैव दैट टाइम। अगर आप क्लास में बैठे होते तो बच्चा बता रहा उस वक्त जर्मनी ये सब वॉर क्यों जीत रहा था? क्योंकि उसने अटलांटिक ओशन ब्लॉक कर दिया था, और अटलांटिक ओशन ब्लॉक करने की वजह थी उसकी सबसे बड़ी, हिटलर की सबसे बड़ी ड्रीम शिप, जिसे आप एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं, उस वक्त हिटलर ने सबसे बड़ी दुनिया की वॉरशिप बनाई थी, राइट? और वो वॉरशिप उसने लगा दी थी अटलांटिक ओशन में, और उसकी इतनी ताकत थी कि वॉर शुरू होने के 2 साल में that ship drowned 182 small and big ships which was transported in England from America to Europe. अमेरिका तब धंधा कर रहा था, दोनों सबको शस्त्र वस्त्र बेच रहा था, तो ऐसे ही 182 शिप्स को उनको दिया था, बराबर है? और वो शिप जो नाम है, नाम भी भूल गया, वो शिप हिटलर का गुरूर था, क्योंकि उसको मालूम था जब तक ये शिप जिंदा है, मतलब as far as this ship is sailing Atlantic Ocean, no one can protect England or France. Even America could not fight. और उसको तोड़ने के लिए कई सारे प्लान हुए, लेकिन वो टूटी 1943 में। 2-3 साल में तो तबाही मचा दी थी। नाम अगर बीच में याद आए, अगर मैं बोलूँगा, अभी तक मेरे को नाम याद था, मैं भूल गया, because it was a dream ship of Hitler, right? So number of incidents happened, and if you get a chance to read, if you have time to read,
यू रिफर ऑल दिस थिंग्स, राइट। फिर जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला किया, वो तो मूवी भी आपने देखी है, बराबर। और सिंगल रेड में पर्ल हार्बर का खात्मा कर दिया। अमेरिका वॉज नॉट इन्वॉल्व, बट आफ्टर इंसिडेंट ऑफ पर्ल हार्बर अमेरिका ज्वाइन द वॉर फ्रॉम अलाइड ग्रुप। दो मिस्टेक हुई थी, वरना इतिहास अलग होता। जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला किया, इसी समय रशिया जो शांत राष्ट्र था उस वक्त, जर्मनी ने उस पर हमला किया। फ्रेंडशिप थी दोनों में, फिर भी जर्मनी ने हमला किया। और उस वक्त रशिया का डिक्टेटर था स्टालिन। जर्मनी को ऐसा लगता था कि रशिया को खा जाएंगे, क्योंकि अभी भी रशिया आजाद हुआ है, 20 साल में वो क्या कर सकता है। उस 20 साल में जब रशिया ने फाइट किया जर्मनी को, तब मालूम पड़ा कि 20 साल में रशिया ने कितना कुछ अचीव किया। Then Russia shined, and Stalin gave a torch fight to Germany, and German soldiers had to retreat from Russia. और उधर से हिटलर का पतन शुरू हुआ। अगर उसने रशिया पे हमला नहीं किया होता तो शायद वो पूरे यूरोप पे हुकूमत कर सकता था। पूरा यूरोप जीत लिया था इटली और जर्मनी के हिस्से में, सिर्फ इंग्लैंड बाकी था। तो इंग्लैंड क्या ही बाकी रखा था जर्मनी ने। वो चूहा बिल्ली के खेल के जैसे, मान लो कि खुला सा रूम है, छोटा सा रूम, एक चूहे को रख दो, एक बिल्ली को रख दो, कुछ नहीं है, सब ओपन स्पेस है। तो चूहे को क्या लगेगा कि वो बिल्ली को किसी भी हालत में हरा सकता है। वो ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा। एंड कैट विल ऑल्सो अलाउ दैट राइट टू प्ले। उसको नापेगी, बच्चा तो भाग ले, जितना भाग ले, वो अपने आप उल्लू भी बनेगी। वो जानबूझ के रेड के हाथ से वो डाउनफॉल भी होगी, छेतराएगी भी। जैसे जैसे वे ऐसा काम करेगी, रेड को कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि चलो मैं बिल्ली को उल्लू बना सकता हूँ, मैं तो भाग सकता हूँ, चढ़ सकता हूँ। लेकिन वास्तव क्या है, जब बिल्ली सोचेगी गेम ओवर, मतलब उसको पार देगी। ठीक वैसा इंग्लैंड के साथ हुआ। यूरोप तो पूरा हिटलर के कब्जे में आ गया था। मुसोलिनी हिटलर के दोनों के कब्जे में। मुसोलिनी ने साउथ यूरोप और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज पे कब्जा जमाया था। जर्मनी ने ईस्टर्न यूरोप जीत लिया था। रशिया अभी बाकी था। ईस्ट में से जापान ने चाइना तक पहुंच गए थे। मतलब ये पूरा मैप बदल दिया था 43 तक। ऐसा कुछ अभी इंग्लैंड अकेला बाकी था। फ्रांस को एयरबेस बना के इंग्लैंड में जर्मनी ने 3 साल में, आई रिपीट 3 साल में हमला करता। लेकिन लास्ट 3 months was very very precarious for England. That is September, October and November. 3 महीना हुआ था। ये 3 महीने में 1942 में जर्मनी बिल्कुल बिल्ली की तरह थी। ये चूहा बच गया था उधर। तो ये 3 महीने में फ्रांस को एयरबेस बना के जर्मनी में 3 महीने में कितने दिन होते हैं बेटा? 90 days. 3 months 90 days. 90 days में जर्मनी ने इंग्लैंड पे 90,000 टाइम्स हमला किया था। 90,000 सॉर्टीज। सॉर्टी मतलब एक एयरप्लेन, फाइटर प्लेन जाता है, हमला करके वापस आता है, उसको एक सॉर्टी बोलते हैं। ऐसे 3 महीने में 90,000 सॉर्टीज लगाए थे जर्मनी ने इंग्लैंड पे। मतलब पर डे 1000 अटैक। अगर आप उस वक्त की एनसाइक्लोपीडिया पिक्चर्स देखो तो ये इंग्लैंड की जो सारी सिटी है अभी सब खंडेर बन गए थे।
खत्म कर दिया था इंग्लैंड को। ये तो अमेरिका जब वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर हुआ और अमेरिका इंग्लैंड की साइड से एंटर हुआ, इसीलिए इंग्लैंड को उठने का मौका मिला और फ्रांस और इंग्लैंड दोनों खत्म हो गए थे। मैंने बोला ना अभी, अगर जर्मनी ने रशिया पे हमला नहीं किया होता, जापान ने पर्ल हार्बर में नहीं किया होता, तो वर्ल्ड वॉर 2 का इतिहास अलग होता। इंग्लैंड और फ्रांस तो खत्म हो गए थे, है समझ में? बट नाउ अमेरिका joined the war with man, material, money. So England and France got some संजीवनी, उसको कोई दवाई मिल गई कि चलो हमें कुछ सहारा मिला, right? As a result, America was a neutral nation. Retaliated. Retaliated means जवाब दिया Pearl Harbor का, right? When the war was going in full swing, America dropped atom bomb on 2 Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. 6th August 1945. हिरोशिमा। उधर जो बॉम्ब गिरा था उसका नाम था फैट बॉय। फैट बॉय नामक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था। फिर भी जापान सरेंडर हुआ नहीं था। फिर 2 दिन बाद नागासाकी पे हमला हुआ, 9th August 1945, right? In order to stop Japan from moving forward, 1,24,000 Japanese lost their life, and Japan surrendered on 11th August. बराबर? 2 cities खदान मिलन हो गए, हिरोशिमा नागासाकी, और 11th August को जापान ने सरेंडर किया। World War II came to an end. Right? After that, the post effect of war is that the establishment of UN and UN was established. 3 other concepts of UN. I am giving you in brief. After World War II, when World War II was going on full swing, there was a need for establishing world peace, and the peace installation was there, made by US President Woodrow Wilson. In October 1945, UN was established. Initially, it had 50 members. मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ. Then each and every member joined. At present, UN is one of the strongest body of international world. Right? It is having 3 organs: General Assembly, Security Council, the Secretary. उसमें सबसे ज़्यादा powerful the Security Council है, जिसमें 5 permanent members हैं, बराबर? 10 members rotation के हिसाब से चलते हैं, and all the world politics is governed round about UN. So मेन बात तो हमारी जो थी वो 1920 से 1945 तक की थी, जो मैंने आपको पूरी बात ऐसे बताई रिविजन। अभी आप सिर्फ पढ़ोगे, बात याद रखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये घटना हुई थी, ये घटना हुई थी, और सब बात क्लियर हो जाएगी, राइट? सो लेट अस गो अबाउट यूएन, राइट? एस्टैब्लिशमेंट एक टॉपिक में चला देना, यूनाइटेड नेशंस। United Nations. At the end of First World War, the League of Nations was formed, but peace could not prevail. But at the end of Second World War, it occurred a League of Nations failure. At the end of Second World War, UN was established on 24th October 1945. Barabar, for world peace. Its headquarters was at New York. America's president efforts established UN had already begun at the time of Second World War. He gave 4 important points for coming out of war of humanity in war. That is number 1, freedom of speech of thought, freedom of religion, economic freedom, and freedom from fear. These all 4 points was incorporated in UN and world march towards world peace. That is called 24th October 1945. And the main organs of UN was the Security Council, the General Assembly, and the Secretariat. And other non-political organs like UNICEF and UNESCO and Custodian Council and ILO and WHO,
all these things. But they are all non-political. You go through it. That is not of that much important, which we require as a part of this lesson. So is it clear? Now, this is your end of your title. That is called revision of lecture number 6. Now it is your time to take homework. Come on. GI number 1. World peace was in danger. Right? पहला फियर्स नेशनलिज्म का जो पॉइंट है उसकी लास्ट लाइन है आपका आंसर. नंबर 2. GI number 2. Militarism. Developed in many countries of world. वापस मिलिट्रिज्म आ गया था. त्रिजु GR नंबर 3. लीग ऑफ नेशंस failed. League of Nations failed. Means failure of League of Nations. World peace was in danger. Militarism developed in many countries of the world. And third, League of Nations failed. तो ये तीनों GR जो मैंने समझाए वो आपके होमवर्क के हैं. तो we are ending this lecture. That is lecture number 6 of chapter number 3. We are completing this chapter. We'll meet with new chapter in new revision lecture. Till then, children, do your work. Try to get something what I taught you. आप घर पे ही बैठे हो, थोड़ा ढूंढो. आपको बहुत सारा खजाना मिलेगा जानकारी के लिए, क्योंकि हमारे वक्त तो सब पढ़ाई थी, बुक्स थी. आपके पास तो इंटरनेट के जरिए सब कुछ है, तो आप अपना टाइम यूटिलाइज करो. ओके चिल्ड्रन, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, गुड बाय.